مکھڈ شریف ایک تاریخی و روحانی قصبہ۔ مکھڈ شریف ایک بہت ہی تاریخی اور اہم قصبہ ہے۔ یہ تحصیل جنڈ میں واقع ہے اور اس کا ضلع اٹک ہے۔ صوبہ پنجاب اور ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے۔ پنجاب کا سرحدی قصبہ اپنے اندر صدیوں کی تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ اس قصبے کے بالمقابل صوبہ KPK یعنی خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ کا علاقہ واقع ہے۔ مکھڈ شریف اسلام آباد سے جنوب مغرب کی جانب تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تحصیل شکردرہ ضلع کوہاٹ سے 20 کلومیٹر، کالا باغ ضلع میاں والی سے تقریباً 18 کلومیٹر اور اٹک شہر سے تقریباً 135 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قصبہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ آئیے تاریخی اہمیت کے حامل اس شہر کے کچھ حصوں کی سیر کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے سر؟ مراد والی، اس کو کہتے ہیں مسجد مراد والی۔ زمانے میں یہ مسجد تھی سمدانی۔ سمدانی ایک پراچہ تھا جی جس کے نام سے یہ منسوب تھی نا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ مسجد ایک مراد بخش ایک بزرگ تھے جو جس نے اس مسجد کی بہت زیادہ خدمت کی، اس وجہ سے پھر ان کے نام سے ابھی موجودہ دور میں مراد بخش کے نام سے یہ مسجد مشہور ہے۔ اس میں نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے ابھی؟ نماز الحمدللہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں آباد لگ رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اور یہ جو پتھر ہے نا، اس کے زمانے میں اس کے متعلق یہ بات ہے کہ ہمارے کچھ دور کے لوگ نا جب بارشیں نہیں ہوتی تھی نا تو اس کے اوپر پانی ڈالتے تھے اور پھر حلوہ وغیرہ تقسیم کرتے تھے تاکہ بارش آ جائے۔ یہ ایک عقیدہ تھا ان کا۔ جی اس پتھر کو اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک بزرگ تھا جو وہاں پار سے جو نا اپنا اٹھا کے دریا سے پار سے ادھر آیا تھا اور یہاں پتھر رکھ دیا، پھر یہ مقدس پتھر بن گیا بارشوں وغیرہ کے لیے یا عبادت کے لیے جو بھی تھا۔ مساجد یہاں پہ صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ محلے آباد ہوتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے نا، یہ والی سامنے۔ جی جی۔ یہ یہاں پہ کھڈیاں ہوتی تھیں۔ کھڈیاں وہ جگہ ہوتی تھی جہاں پہ کپڑا بناتے تھے۔ کپڑا بنتا تھا، اس کو کھڈیاں کہتے ہیں۔ کپڑا یہ سامنے کھڈیاں تھیں۔ یہ سامنے جی ہاں، یہ سارے لوگ یہاں پہ مطلب پر کھڑے ہیں۔ مکھڈ مین مہا کھڈ، مہا مین بگ، کھڈ مین یعنی تھوڑی سی وہ گڑا ٹائپ چیز۔ جی جی گڑا، بڑا گڑا مکھڈ، مہا گھاٹ یعنی بڑا گڑا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ گڑا۔ تو یہ تقریباً یہاں پر بہت سی تہذیبوں کے آثار ہیں۔ کوئی وثوق سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کم از کم 300-400 سال کے آثار بہت آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ یہاں اچھا سر، یہ جو دریا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی اس پہ ڈالیں گے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، کون سا دریا ہے، اس کا نام وغیرہ؟ یہ دریا چین میں ہے، جھیل مانسروور تبت میں، وہاں سے نکل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ آتا ہے لداخ انڈیا میں، صحیح۔ پھر سکردو کے پاس یہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے، اور یہاں سے اوپر ڈیم بنا ہوا ہے اور ویلا ڈیم، اس سے اگر ڈاؤن آئیں تو خیر آباد کے مقام پر اس میں یعنی وہ کابل اور انڈس آپس میں مل رہے ہیں، اٹک فورٹ کے آلموسٹ سامنے۔ صحیح۔ یہ سر یہ جو سامنے ہے دریا کے پار جو علاقہ ہے اس کے بارے میں بتائیے کچھ۔ یہ کون سا ہے؟ تحصیل ہے کوہاٹ کی لاچی، لاچی، اس کا علاقہ ہے شکردرہ۔ شکردرہ ہے، آئل کے بہت بڑے ریزروائر ہیں سورس، یعنی کہ یہ سامنے لاچی ہے اور اس کی شکردرہ ہے اور بیسیکلی یہ KPK ہے۔ جی یہ KPK ہے۔ تو اٹ مینس کہ مکھڈ جو ہے وہ ایسے خوبصورت مقام پہ ہے کہ جہاں
दो सूबों का संगम है बेहतरीन, जी तो बीच में दरिया एक बॉर्डर का काम जी देता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो लोग होते हैं आर पार एक दूसरे के यकीनन जाते होंगे। जी जी बोट से अभी आप अगर उधर देख रहे हो लोग आ रहे हैं। जी, बोट्स इस वक्त स्क्रीन पर अभी तो नज़र नहीं है, नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर पहले थी। जी जी, अच्छा। घाट है वो सामने, तो वो यानी उन इलाकों के जो इधर आते हैं रोज़मर्रा चीज़ें खरीद कर फिर चले जाते लेने हैं। के लिए, खासकर संडे को ज़्यादा लोग आते हैं। सही हो गया, जुमरात वाले रोज़ आते हैं, सही है। तो वहाँ पे यानी ज़्यादा रश होता है। अच्छा, इसके अलावा सर ये यहाँ पे ये भी है कि चूँकि आपने बताया कि बहुत तारीखी ये जी जी शहर है, तो तारीखी मतलब ये है कि इसमें किस हवाले से है, तहजीब व तमद्दन या कल्चर था या क्या इसमें एक वो तो ये है कि सिख हैद में यहाँ पर फोर्ट बना हुआ था, किला। इसका हमें बाकायदा तारीख़ पंजाब में जिक्र मिलता है कि यहाँ पर 3 बार सिखों की अफ़गानों से या जो लोकल लोग हैं उनसे जंग हुई थी, और उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जो सिख थे वो हलाक हुए थे। सही है। जी जी, कन्हैया लाल की वो क्या तारीख़ पंजाब ये उसमें लिखा उसका हुआ है। जी ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ तहजीबों के लोग थे, मसलन यहाँ कौन कौन से मज़हब थे? यहाँ में असल में जो आसार मिले हैं वो बुद्ध मत के भी हैं, लेकिन वो इतना कोई यानी अथेंटिक नहीं है। तो हिंदू भी ज़्यादा थे? authentic है वो है सिख, हिंदू, मुसलमान। यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है मुसलमानों का, तो वो इंस्पायर है सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से। रीज़न इसकी है कि यहाँ की पराचा कौम की तो वो उधर जाते थे बल्ख, बुखारा और इस क्या कि जो सेंट्रल एशिया के अहम शहर थे तिजारत के लिए। जी जी तिजारत के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने ना जो देखा मकानात और जो तर्ज तामीर वगैरह देखा, वो वहाँ यहाँ से फिर यहाँ से अपनाने की कोशिश की है और कुछ किसी हद तक कामयाब भी जी हुए। जी। ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर इससे ऊपर महमूद की फौज भी उसने ये रास्ता इस्तेमाल किया था। महमूद लेकिन- गजनवी की? जी महमूद गजनवी, लेकिन अभी इसके बारे में कोई यानी authentic तारीख वो में नहीं है। हमें नहीं मिली। ये रवायात हैं। जी जी सही हो गया। अंग्रेज़ों के दौर में भी ये एक अहम शहर था, थाना था, इवन के यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी थी, टाउन कमेटी, और अस्पताल था, लेकिन अब वो सारा ख़त्म हो गया है। वो ज़माने के यानी लिहाज से यहाँ के लोग यानी ये इलाका ज़वाल का शिकार है। जो सामने नज़र आ रहा है इसके बारे में थोड़ा ये जो हिफाजती दीवार नज़र आ रही है, ये उस वक्त हिंदू और मुसलमानों के जो है ना कम्बिनेशन की वजह से वजूद में आई, ताकि यहाँ पे हिफाजती तौर पे लोगों के लिए ये बनाई गई कि जो लोग नहाने के लिए यहाँ पे आते हैं ताकि पानी उनको नुकसान ना पहुँचा सके। अगर उनकी कोई सेफ्टी के लिए थी। सेफ्टी के लिए। तो एक तो वो नहाने धोने के लिए आते, एक इसके अलावा कपड़े वगैरह धोने के या इस तरह के मामलात भी जी थे? जी, इस तरह के मामलात भी थे। औरतें जो है कपड़े यहाँ पे धोती रही हैं जब तक वाटर सप्लाई यहाँ पे नहीं थी, उस वक्त तक यहाँ पे जो है कपड़े ये भी चलता धोते रहे और लोग नहाते भी रहे हैं। नहाते भी रहे। तो ये जो दीवार अभी हमें थोड़ी बहुत ब्रोकन नजर आ रही, टूटी फूटी, जी, जी, जी। इसकी क्या वजह है? ये इस वजह से है कि एक तो ये है कि यहाँ पे लोगों की तवज्जो नहीं है, जो पत्थर गिर गया दोबारा किसी ने जो है ना उसको लगाने की जहमत नहीं की है। सही है। और दूसरा जो है ये सबसे ज़्यादा डैमेज उस वक्त हुई है जब 2010 का सैलाब आया। सैलाब आया था। हालांकि तेज़ से तेज़ पानी भी इस दीवार को नहीं तोड़ सके, लेकिन जो 2010 का सैलाब था उसके अंदर इतना जहरीला मादा था कि वो इस दीवार को भी तोड़ के चला गया। तोड़ के ले गए। उसके बाद से मुरम्मत नहीं हुई। उसके बाद से मरम्मत नहीं हुई। बाद जब प्रोग्राम बने कि इसको मरम्मत कराते हैं, लेकिन इस तरह का मटेरियल हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि ये चूने और सीमेंट के से बनी हुई है या किसी और मटेरियल से बनी हुई है। आजकल की जो सीमेंट है ना वो इस पानी को रोकने के लिए जो है ना कारगर साबित नहीं हो सकता। ये भी एक टेक्निकल रीज़न है। जी, जी। तो वो जो भी मटेरियल था कंस्ट्रक्शन, वो आजकल शायद इसको समझ नहीं सके अभी तो, या कोशिश नहीं की जी, गई। इस पतन का नाम है लूणा वाला पतन। लूना वाला पतन भी इसको कहते हैं। इसकी जो है ना वजह तस्मीह ये है कि किसी ज़माने में ये नमक की मंडी जब मुखर हुआ करता था, उस वक्त इसी पतन पे आके कालाबाग से नमक यहाँ पे रखा जाता था, फिर यहाँ से सप्लाई जो है मुख्तलिफ इलाकों में किया जाता था। इस वजह से इसका नाम जो है लूना वाला पतन है। अभी ये यहाँ पे लोग आके नहाते भी हैं, ये पिकनिक पॉइंट भी है, और इसके अलावा जो है यहाँ तारीखी अहमियत का हामिल तो है कि ये सबसे बड़ी मंडी थी। ये जी कहाँ से आता था नमक? कालाबाग से आता था। काला बाग से निकलता था कुदरती जी, जो जी, ये एक पीस है, जी ये वाला ठीक है। एक ही पीस है। मशीन कोई काम मशीनरी वाला नहीं है सर इसकी। तो एक ही पीस है। और ये मसल्ला यानी कि मस्जिद ये है, जी। और एक ही पीस है। और ज़ाहिर है उस ज़माने में कैसे ये इसको उठाया गया होगा जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, क्रेन और नहीं। ये जो
इसको पंजाबी में पड़ावा बोलते हैं सर। ये जो सामने नजर आ रहा है दीवार सी पड़ावा, ये किसी भी इमारत को ना सपोर्ट करने के लिए, रोकने के लिए, ताकि- पुश्ता टाइप। या ताकि पानी जो है ना उसको गुजान ना पहुँचा सके। सही है, जबरदस्त। ये है गुफ। इधर एक और गुफ है। इसका ये जो है ना सर किसी नहीं प्लीज सर, इसका थोड़ा सा, ये क्या कौन सा कहलाता है? ये बोहड़ वाला पत्थर कहलाता है सर। यहाँ पे गर्मियों में लोग जो है आके नहाते भी हैं और इसकी छांव के नीचे बैठते भी हैं। ये काफ़ी हरा भरा होता है गर्मियों के दिनों में, और यहाँ पे लोग जो है मजालिस वगैरह का भी एहतमाम करते हैं। बहुत बड़ा दरख्त है ये। यहाँ सोते भी हैं यहाँ पे रात के वक्त, और पिकनिक वगैरह भी ईद के दिनों में मनाते हैं, जिसमें काफ़ी सारा एंजॉय किया जाता है। ठीक हो गया। अब वो जरा सामने वाला, वो जो जगह है ना, यहाँ पे किस ज़माने में ना कश्तियाँ आके मतलब एक बंदरगाह के तौर पे इस्तेमाल होती थी। ये ठीक तो है, सामान ये वगैरह जो जेटी है। या गद्दों या खचरों वगैरह पे ये सही है। जाया जा सकता है। अच्छा, ये बकायदा बनाई गई है, उस साइड पे बकायदा नहीं है ना, जी, जी, तो वो डेंजरस भी है। Dangerous ये क्योंकि बकायदा है तो इसलिए किनारे पे आके लगेगी, सेफ्टी भी है, लोगों को पता भी और है क्या रास्ता भी क्लियर है सर। रास्ता भी थोड़ा ज़्यादा इवन गहराई भी नहीं, है, जी। लेवल पे है ना, जी, जी। तो ये उसकी निस्बत ज़्यादा सेफ है। ज़्यादा सेफ है सर। ठीक है, तो यहाँ पे आती हैं कश्तियाँ और ये सामान तजारत वगैरह पुराने ज़माने से ये बहुत चला है, जा जी, रहा जी, है, सर। और आजकल भी ये होता है जी जी होता है, लेकिन आजकल बहुत कम होता है कश्तियों के जरिए। कश्तियों के जरिए, ये क्योंकि आजकल वो रोड ज़्यादा वगैरह बन नहाने गए। के और कपड़े धोने के काम आता है। अभी भी लोग इधर जी, जी, आती हैं जी, ख़वातीन जी, वगैरह। जी। सही है। इसे कहते हैं मस्जिद कुरैशियों वाली मस्जिद। कुरैशियाँ कुरैशी एक कौम थी। कौम थी उनके। अच्छा, इसको कहते हैं शमसी कलाक। इसमें ये जो साया होता है उसके लिहाज से चलते हैं ना, ये लाइनें जो लगी हुई हैं ये फिर उस हिसाब यानी दोपहर के लिए लगे, दोपहर के लिए। अच्छा, इसमें नमाजों के औकात शायद होंगे ये सारे नमाज उस लिहाज से, है ना। सही हो गया।